ये बताओ कि it can be essential hypertension, it can be pregnancy induced hypertension, or it can be preeclampsia or severe preeclampsia, और गोइंग अप टू, अभी भी हम पेरिफेरी में काम करते हैं तो वहां पे एक्लेम्सिया भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स है जो आपको अलग-अलग सब आने चाहिए। आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन का भी हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस, प्रीक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, ये सारे मैंने 5 केस तैयार किए हुए इसी निस्बत से। फिर हम जल्दी जल्दी करें तो 5 कर लेंगे। तो 5वां एक्लैम्सिया है, लेकिन आज शुरू करते हैं हाइपरटेंशन से। कौन कौन है वॉलंटियर्स? सर मैं डॉक्टर सबा। सबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं खारियां से। अच्छी बात। और 2-3 बोलो ना, और कौन? सर डॉक्टर नाजिश। आप हर दफा आ जाती। रीम यार खां से। सर लैया से। ओए माशाल्लाह, आई लव इट कि आप वहां से बैठ के पढ़ रही हैं। थैंक यू सर। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। थैंक यू सर। और नाजिश के बाद कोई और? कोई नहीं? सर डॉक्टर कुरतुलैन। सर डॉक्टर कुरतुलैन। आप ही हर दफा आ जाती है। कुरतुलैन, आप कहाँ से? इस्लामाबाद से? सर हाफजाबाद। ये फर्क है फिर। नहीं सर, पहले लाहौर में ही थी, अभी मैं हाफजाबाद में होती हूँ। अच्छा अच्छा। और सर फातिमा। आप कहाँ से बोल? सर लाहौर से। चलो अभी 5वां फ्री रखते हैं, देखते हैं। सबा फ्रॉम खारियां। जी सर। छोटी सी हिस्ट्री है। A patient aged 30 years, primary gravida, gestation period 30 weeks. रूटीन एंटीनेटल के लिए आपके पास आई, बाकी सब कुछ ठीक। रूटीन में ब्लड प्रेशर 150/100। ये वो केस है जो आप रोज देखते हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं दोहराता हूं, एज 30, प्राइमरी ग्रेविडा 30 वीक्स पे, फर्स्ट विजिट फॉर एंटीनेटल, और वो आई आपके पास तो रूटीन एंटीनेटल हो रहा है। जनरली नर्स ही लेती है ब्लड प्रेशर, उसने ब्लड प्रेशर लिया और कहा मैडम ये 150/100 है। फरमा दीजिए सबा बीबी। Assalamu alaikum. First of all, I will introduce. Assalamu alaikum. First of all, I will introduce myself to the patient, and after rapport building, I will confirm the demographic details. Then I will ask about the missing details. That how long she is married for, and what is her last menstrual period, and what is her educational status and occupation. And then I will take relevant focus history. Then I will ask is there any history of raised hypertension at home, and is this her first episode of raised BP? Then I will ask any history of hypertension, dizziness, our right upper quadrant pain, are blurring our vision. And then then I will ask about her pregnancy,
it was a spontaneous spontaneous or planned pregnancy, and then any history of any history of vaginal discharge, bleeding in her first trimester of pregnancy, and history of folic acid intake. And then I will ask about her dating scan, and then history of supplement takes in her second trimester, history of quickening, or history of detailed anomaly scan. Then I will detailed anomaly scan or growth scan in second trimester. Then I will ask about does she is feeling then history of fetal movements at present. And then I will consult. Then after that, I will examine the patient. I will examine the patient, and I will check her weight and height for calculation of the BMI. Then I will check her. I will repeat her blood pressure after 4 hours, or after 4 hours apart. Then I will do her automated region strip device to check protein urea. If protein urea is +1, then I will quantify her quantify her protein urea by albumin creatinine ratio, or a protein creatinine ratio, and that is significant. It is more than 30 mg per liter, or albumin creatinine ratio if it is more than 8 mg per liter. Then I will then after that I will send her LFTs or RFTs, and complete baseline investigation for the general well-being of my patient, which include a complete blood count, hemoglobin with date, gram per deciliter, total leukocyte count and platelets, and then her blood group with Rh factor, and then random blood sugar level, and viral serology, which include anti-HCV, and then hepatitis B surface antigen. And after that, I will do her scan, growth scan, and the umbilical artery Doppler indices, and and CTG if it is then sir, sorry, ये मेरी very first time है, इसलिए मैं बहुत confused हूँ. नहीं, मैं तो जो आप कही जा रही है मैं लिखता जा रहा हूँ, जी मैं सर. नहीं बोला. जी सर. आपने And 4 मिनट को लगा दिए. बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलती जाइए. जी sir, after that I will as per guideline, if our BP remain 150/100, and then there is no sign and symptoms of neurological deterioration like hypertension, blurring of ear, right upper quadrant pain, and then I will counsel my patient regarding the condition, and I will explain in empathic way that that if the BP remains more than 140/100, then it is a pregnancy induced hypertension. If she is not having previous complaint in her pregnancy, or if there is no other high risk factors are present, like any history of hypertension in her family, or history of chronic renal disease or autoimmune disease, or the any history of associated comorbs, like could be that could be type gestational diabetes, like or and if our BMI is more than 35, then after that my patient would fall in high risk pregnancy. And after that, all the explaining the condition, first of all I will do the general measures, which includes that healthy diet intake, and then regularly exercise that at pace, not heavy exercise. Then after that I will explain the conditions to my patient with all sign and symptoms, that if her BP remains more than 140/90, then I will add my antihypertensive in her management, which first includes my first drug of choice would be labetalol, and then I will, after that, if BP is set, and then if BP is not maintained, then I will titrate her drug, and then I will explain the
frequency of consultation, that I will call after every 2 weeks, and if BP remains controlled, then at each visit I will ask about the history of I will do her blood pressure, then urine analysis for the proteinuria, and then history of a headache. Then after that I will and repeat the growth scan. Then if my aim of delivery is after 37 weeks of gestation, and depending upon to a balance between the maternal status and the fetal prematurity, and if all remains good, then after 37 I will call at 36 weeks to discuss the mode of delivery and the timing of delivery, which if there is a no obstetric indication for cesarean section, I will go with the vaginal delivery after 37 completed weeks of gestation. डिलीवरी तक आप पहुंच गई हैं, ठीक है। आपके नंबर है 5। जी सर। 5 हर दफा मैं कहता हूँ पास नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आपने दूसरे स्टेशन पे किया तो फिर 5 के 6 हो जाएंगे। अगर अच्छा ना किया 5 के 5 रहेंगे, फिर आप पास नहीं। क्यों पास नहीं हो? सर मेरा हेफ हैजर्ड भी था, मेरा कुछ मुझे था पहले प्रीवियस फैमिली। मैं बता देता हूँ। अब ये सिंपल, मैंने कहा ना, गौर करो जो डेटा दिया गया है, आपने उस पर फोकस किया, लेकिन मैं बता देता हूँ, उस फोकस में आपको 7-8 मिनट में आपने एक्चुअली बच्चा डिलीवर नहीं किया, लेकिन बच्चा डिलीवर करके उसका एपगार और नियोनेटल केयर तक जाके फिर आप पास होती। वो इसलिए नहीं हुआ, मैं बस अब आप नोट करते जाइए। आप जी सर, जी सर। आपने उसका एजुकेशन का पूछा, वो कितना रेलिवेंट है, ठीक। आपने शुरू में ही उसकी हाइपरटेंशन का हिस्ट्री और विजन भी पूछा, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो दे कुड हैव कम लेटर। फिर प्रेगनेंसी में ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है कि प्लान प्रेगनेंसी है, हाउ इज इट दैट रेलेवेंट? यू आस्क फॉर vaginal discharge, any bleeding up to now, maybe अब फॉलिक एसिड ले रही है कि नहीं ले रही, maybe। फिर पूछा आपने, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, ठीक है। वो सप्लीमेंट फॉलिक एसिड पहले पूछा, सप्लीमेंट फिर पूछ लिया आपने, चलो मैंने मान लिया। मेसोसाइकिल, फिर आप सेकंड ट्राइमेस्टर पे आ गई। फीटल मूवमेंट्स का थोड़ा सा पूछा आपने, लेकिन सही तरह से नहीं पूछा। और फिर एग्जामिनेशन पे आ गई और वेट, बीएमआई बोला, अच्छा किया। रिपीट ब्लड चेक बोला, बहुत अच्छा किया। फिर उसकी विजन पूछी आपने, फिर प्रोटीनूरिया पूछा आपने, फिर क्या, ये मुझे भूल गया क्या पूछा, ब्लड ग्रुप पूछा, और फिर यूरिन लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, सीबीसी ग्रुप, ब्लड शुगर गुड। आपने ये इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई या नहीं हुई, लेकिन HCV था उसका, हेपेटाइटिस सी पूछा। तो फिर उसके बाद उसका स्कैन और डॉपलर हुआ कि नहीं, और फिर आपने कहा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, अच्छा किया। और फैमिली हिस्ट्री फिर आके ये सारे के बाद फिर अब मुझे फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है कि नहीं है, इम्यून डिसऑर्डर की है कि नहीं है, डायबिटीज, BMI, और ये चलो रेलेवेंट हो गया। देन यू जंप ऑन टू एडवाइस। मैं उसको डाइट बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी, ब्लड प्रेशर 140/90 होगा तो क्या कहूंगी, लबिटालॉल दे दूंगी,
फिर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ब्लड प्रेशर, यूरिन, और हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर आपने फिर आके दोबारा क्रोनिक रीनल डिजीज, इम्यूनिटी, ये फिर 37 वीक्स में क्या करेंगे आप ये। मतलब आपका फोकस ऑन टू हाइपरटेंशन नहीं था, यू केप्ट deviating or diverting yourself into routine questions which do not fetch you any marks. उसकी एजुकेशन आपने पूछी, क्या नंबर मिलेंगे आपको, ये स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी थी और कि नहीं, वजाइनल डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, फोलिक एसिड खा रही है कि नहीं, डायरेक्टली रिलेशनशिप हाइपरटेंशन के साथ तो ना हुआ ना। फिर ये टेस्ट आपने ठीक बोले, ब्लड प्रेशर ठीक बोला, रीचेक करूंगी। और फिर जो बहुत पहले पूछना चाहिए था, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, बीएमआई की तो है नहीं। और फिर आप एडवाइस पे आ गई, एक्सरसाइज भी बताएंगी, आप डाइट भी बताएंगी, चलो मैंने मान लेता हूँ। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं था कि आप मुझे मजबूर करती कि मैं आपको 6 नंबर देके पास करूं। इतना सारा आपने इररिलेवेंट डाटा डाला है बीच में, जी जो सर। हेल्प नहीं कर रहा आपको पास होने में। सो आप वापस जाके यही घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि इसका फोकस्ड आपकी हिस्ट्री कैसे और होती, इररिलेवेंट ये क्वेश्चन निकाल के वो डालती हैं, वो डालती। बस सीधा आपने शायद पूछा, मैंने लिखा नहीं कि आपका शी इज आफ्टर 30 year old, कि इससे पहले कभी ब्लड प्रेशर चेक हुआ आपका, ये क्वेश्चन ये होना चाहिए। प्री प्रेगनेंसी कभी ब्लड प्रेशर चेक हुआ नहीं हुआ, इट मीन्स यू आर आस्किंग कि उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि नहीं है। अगर हुआ, सिंपल सवाल उसका, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या ट्रीटमेंट हुआ, जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। You have made the diagnosis. This is a case of essential hypertension, not a case of pregnancy-induced hypertension. आपने इस तरह से ये सवाल नहीं पूछा to make a diagnosis कि ये 150, 100 पता नहीं pregnancy induced है कि essential hypertension। फिर अगर आप वाकई पास हो रही होती तो जल्दी से ये डिलीवरी, जैसा आपने कहा कि ऐसे करूंगी, फिर बच्चे का बता के फिर आप फॉलो अप बताती। जो बंदा केस के फॉलो अप तक पहुंचता है वो पास होता है, सिंपल सी बात। जो फॉलो अप तक पहुंचता है वो पास होता है। आप फॉलो अप क्या, आपने तो बच्चा डिलीवर भी नहीं किया, थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि वेल कंट्रोल्ड है, तो फिर नहीं, तो वहां तक फिर घंटी बज गई, वो भी मुकम्मल ना हुआ नहीं। तो इस लिहाज से आप घर जाके ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इनको काटिए, जो मैंने बोले हैं, एजुकेशन, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी, वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, फोलिक एसिड, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पहले होनी चाहिए थी, और फिर उसका बीएमआई के मुताबिक उसको एडवाइस करोगी आप। एक्सरसाइज, बीएमआई रिलेटेड एक्टिविटी अब शायद नहीं है, वो भी चलो। फिर आती आपके, मैं मॉनिटर करती प्रेगनेंसी को अब के बाद, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं आप, आपने ये नहीं किया। सर ये फिर रिपीट उसके करके मुताबिक मॉनिटरिंग। आप आई थी कि मैं कब डिलीवर करूंगी, तो मैंने टाइम खत्म कर दिया। तो कब और कैसे, अगर ऐसा होता तो नॉर्मल वजाइना सब कुछ, मदर मॉनिटरिंग, फीटल मॉनिटरिंग इज ओके, पेशेंट ब्लड प्रेशर यही रहता है, तो मैं उसको स्पॉन्टेनियसली वजाइना डिलीवरी
का इंतजार करूंगी या इंड्यूस करूंगी पीएच। नहीं तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मैं उसकी मैनेजमेंट चेंज करूंगी, उसको दाखिल करूंगी, उसका ये करूंगी, उसका सेक्शन करूंगी, कब करूंगी, कैसे करूंगी, ये सारी बातें कहनी चाहिए थी। वो नहीं हो। चले कोई बात नहीं, बट यू हैव डन वेल के 5 मुझसे सर जी सर मैंने जी एक बोलिए। क्वेश्चन करना था सर। ये तो सर इस केस में डॉपलर भी पूछना था, और सर दूसरा ये प्राइमरी ग्रेविडा है, तो हम सीपीडी, बिशप असेसमेंट, लाई और प्रेजेंटेशन भी तो देखेंगे 37 वीक पे। बिल्कुल बहुत जरूरी था वो अब बेचारी सभा के लिए आप और मुश्किल करती जा रही है, लेकिन फोकस और नहीं सर, मैंने आपसे वैसे क्वेश्चन किया था जी। वो फिर हम ये कहेंगे कि उसकी टाइप कब और कैसे डिलीवर होगी विल डिपेंड अपॉन प्रेजेंटेशन एंड रूलिंग आउट सीपीडी एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ये एक फिक्रा बोलते ही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बोलती। सर चलो लेकिन और सीपीडी सर हम इसमें स्टीरॉइड कवर नहीं देंगे? जी, सर स्टीरॉइड कवर भी तो देंगे हम इस केस में। वो ये बहुत कुछ करेंगे ना, वो स्टीरॉइड कवर तो आजकल सारा डिस्प्यूट में चला गया है, लेकिन हम सबको ही देते हैं, हम सबको देते हैं। लेकिन सर सीपीडी तो हम 37 पे तो नहीं, जब तक ट्रायल और लेबर नहीं देंगे तब तक तो नहीं कहेंगे ना। ना ट्रायल ऑफ हाँ ना, लेबर जब तक करने से पहले कहेंगे। जी ठीक 37 पे देंगे ना? एक ये अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। जी सर। ट्रायल ऑफ लेबर इज आफ्टर रूलिंग आउट cephalopelvic disproportion CPD। सो CPD रूल आउट करने के लिए अगर आप लिख रही है तो ये 3 पॉइंट लिख लें। हाउ विल यू रूल आउट? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, हर हाइट, हर स्पाइन। नंबर 2, lie of the baby, presentation, whether engaged or not. Number 3, pelvic examination to assess conjugates, various, true conjugate, diagonal, whatever. ये 3 इस तरह से बोलने हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, सीपीडी के लिए आप इस तरह से किताब में लिखा नहीं हुआ, आप बोलते नहीं। When it comes, how will you assess CPD or rule out CPD? Then you will say, Madam, first I will assess her height. 5 फुट से नीचे है तो CPD डाउटफुल हो जाती है। Then examine her spine. ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, इसलिए लिख लीजिए। I will examine her spine. Then examine करूंगी lie of the fetus presentation and assess whether fetal head is engaged or not engaged. वो 5+ जो गिनते हैं, 1 + 2 3+. Then pelvic examination to assess conjugates. Then cephalometry by ultrasound, pelvimetry be lateral pelvic by X-rays. ये पूरा इसी तरह ही बोलना है आप। अगर नहीं लिखा तो जरूर लिख लीजिए बाद में। सर ये स्पाइन में हम क्या देख रहे हैं? हाँ जी। एग्जामिन हर स्पाइन। सर ये दूसरा पॉइंट आपने बताया ना, एग्जामिन हर स्पाइन, तो हाँ। स्पाइन में हम क्या देखेंगे? ये उसका Abnormal काइफोसिस स्कोलियोसिस तो नहीं है। कद कितना भी अच्छा हो, अगर उसको स्कोलियोसिस है तो पेल्विस टिल्ट हो जाती है, एक सी नहीं रहती, टिल्ट हो जाती है। अब टिल्टेड पेल्विस जो है उसके पैरामीटर उसी तरह नहीं रहते जैसे हम कॉन्जुगेट्स को असेस करते हैं, उसमें सीपीडी हो जाता है। और उसमें ये भी ऐड कर लीजिए, आपने ये कह दिया तो whether she walks with a limp or both legs are equal in size or one leg is short. If one leg is short, फिर pelvis tilted है, फिर उसको सीपीडी। मैं कहानी सुना देता हूँ। मेरे उस्ताद थे सेंट्रल मोड स्कूल में,
वो अपनी बहू को लाते थे। शी वॉक्ड विद ए लिम्प, बड़ी टॉल लड़की थी। मैंने कहा ये तो इतनी टॉल है, 5 फुट 8-9 इंच उसका कद था, तो इसमें तो सीपीडी नहीं होगी। हमने नॉर्मल लेबर की कोशिश की, लॉन्ग लेबर के बाद उसका सेक्शन किया। मैंने अब शर्मिंदगी उठाई, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। चलिए जी, हम तो आज ब्लड प्रेशर की बात करने वाले थे। Excuse me, sir. जी सर ये पेल्विमेट्री इंडिकेटेड है, आप तो कहते हैं कि ये एक्सक्लूड हो गई है। जी, वो इन्होंने कहा ना प्राइमरी ग्रेविडा में पेशेंट रीचेस नियर टर्म, आप वजाइनल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, यू हैव टू रूल आउट CPD if the head is not engaged. If head is engaged, then it's different. ओके Excuse me, sir. हाँ सर जी, जिस तरह अब ये हाइपरटेंशन का केस है, तो हाँ, इसमें हम जो पेल्विमेट्री को इतना डिटेल कहने के बजाय हम समरी में ये भी तो कह सकते हैं कि आफ्टर रूलिंग आउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह, सर जो भी है SZ बॉल अच्छा बोला। मैं तो बार बार कहता हूँ ना, आप रिमेन फोकस ऑन टू द सब्जेक्ट। आज फेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो ये एक फिक्रा बोल के आफ्टर रूलिंग आउट एनी CPD, बस बहुत है। आपने यू हैव टू रिमेन ऑन हाइपरटेंशन। चलें, अगली है नाजिश लैया से। जी Are सर। you there? सर मेरे साथ भी एक केस कर लीजिएगा प्लीज। क्या कर लूं? सर एंड पे एक केस मेरे साथ कर लीजिएगा डॉक्टर लुबना के साथ। सर 10 हाँ मिनट। हाँ, तो आप फिक्र ना करें, I'll try my best. रिलैक्स। चलो, एंड मुमकिन है तुम इतना पूछो, मुझे कुछ करने की जरूरत है। चलो, नाजिश फ्रॉम लैया। A sir. patient, similar history है, age 30 years, primary gravida, रूटीन चेक पे उसका ब्लड प्रेशर 150/100 है, और यूरिन में 300 मिलीग्राम से ज्यादा प्रोटीनूरिया। जी सर। दोहरा दूं कि मैं दोहरा देती हूँ। 30 years old, primary gravida, for routine antenatal visit, and on examination blood pressure is 150/100 millimeter of mercury, and on urine dipstick there is more than 300 proteinuria. वेरी गुड। चले Sir, बोली। Sir, after mutual introduction and confirming the patient identity, I will complete the missing biodata, including her married for, and then I will inquire about her last menstrual period, regularity of her cycle, and then I will inquire about history of any record available for hypertension before pregnancy. And and also any symptoms like headache, epigastric burning, blurring of vision, and swelling of hands and feet before pregnancy, or any treatment she is taking before pregnancy. And then also I will inquire about any history of any medical disorder, chronic medical disorder, including any renal disease, thyroid disease, any autoimmune disease, and diabetes. And ask about the pregnancy, whether conceived with treatment or spontaneous, and folic acid intake, any history of nausea, vomiting, fever, flu, rash, dating scan done or not, and then what was the report. And then I will inquire about the second trimester anomaly scan done or not, what was the report, and history of hematinics intake, any history of antenatal visits to a doctor. And then I will inquire about the third trimester pattern of abdominal growth and fetal movements up till now. And then I will inquire about her past significant family history, medical history, and then her past surgical history, and drug allergies, drug history, any significant, and then past allergies, socioeconomic history, and sport at home,
and then I will do any investigations and treatment other than these investigations up till now. After that, I will do the examination in which I will check the BMI, vital signs. I will check the puffiness or any periorbital edema on face, and then I will check for the pallor, jaundice in eyes, and thyroid, chest, breast, and cardiovascular examination for general health of my patient. And in abdominal examination, I will look for any scar marks, visceromegaly, and any tenderness, and then I will do the abdominal examination in which I will check for the uterine tenderness and any uterine contractions or pain. And then I will do the obstetric examination in which I will look for the symphysiofundal height, whether corresponding to dates or not, and its lie, presentation, and the estimated fetal weight, and clinically liker and assessment. And then I will check the fetal heart rate for complete 1 minute. After that, I will look for the pedal edema, and then I will do the investigations in which I will do the baseline investigations, including blood complete picture with the date for hemoglobin, TLC, and platelet specifically, and blood sugar random or OGTT available, and blood sugar and virus serology regarding hepatitis B, C, HIV, and midstream urine for pus protein glucose, blood group with Rh factor. In specific investigations, I will look for LFTs, RFTs, and platelets if and PT, APTT if platelets are reduced. And in ultrasound, I will check for the dating scan, anomaly scan, and fresh obstetric ultrasound for live presentation and biometry, and liker volume, and placental localization, and then the umbilical artery Doppler, whether absent, reduced, and then I will after completing my investigations, I will look for the blood pressure record in previous 24 hours and any treatment ticket available. Sir, continue करूं? मैंने रोका. जी sir. First of all, sir, in management, I will counsel my patient about the diagnosis that it is a high-risk pregnancy of 30 weeks, gestational amenorrhea with hypertension, moderate hypertension, and along with proteinuria, and which is preeclampsia. And then I will explain the fetal-maternal risk associated with the preeclampsia to mother and to fetus. After that, I will do the I will admit my patient, and then I will do the fetal-maternal monitoring, which will be clinical and electronic and blood monitoring, and then I will control her blood pressure on antihypertensive, which is the Lipitalol, which is the drug of choice. And after her blood pressure is controlled, her investigations are within normal limits. And then after completing the DEXA cover, I will discharge my patient with red flag signs, including headache, epigastric burning, blurring of vision, swelling of hands and feet, and any neurological symptoms, confusion, drowsiness, and also I will and then I will call her for frequent monitoring and home blood pressure record. At 36 weeks, I will discuss the birth plan with my patient. That if there is no contraindication to normal vaginal delivery by doing pelvimetry, I will if her blood pressure is controlled on antihypertensive, then I will induce her at 37 weeks. And then and after when she will be in labor, I will give one-to-one care, WHO labor care guide, and fetal monitoring, and then intake output record, her fresh investigations, and keeping the pediatrician on floor. I will in second stage of labor, I will shorten the second stage and hand over the baby to the pediatrician, and I will do the active management of third stage of labor, and post-natally I will counsel my patient for the breastfeeding, contraception, and I will keep close monitoring of the blood pressure, as there is a 44% risk of postpartum eclampsia.
When her blood pressure is controlled, she will be asymptomatic, and along with the protein urea checking, if when it's normal, then I will discharge her at third postnatal day, and I will call her for 6 weeks follow-up, on which if I will check protein urea. If positive, I will do RFTs and renal scan. And take हो गया टाइम, आपका खत्म हो गया। गुड, मैं फिर भी आपको 5+ दे देता हूँ, सिर्फ 5 नहीं 5+ कर दिया मैंने, और ऑलमोस्ट 6, लेकिन 6 नहीं है, वो इसलिए नहीं है, you have taken for granted कि आपके इस पेशेंट में इस ट्रीटमेंट के साथ उसको हाइपरटेंशन के बाद प्री एक्लेम्पसिया, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया नहीं हुआ। बड़ी अच्छी डॉक्टर हो तुम कि अपने मरीजों से बचा लेते हो तुम सबको कि उनको सीवियर प्री एक्लेम्पसिया ना हो, एक्लेम्पसिया ना हो, है कि नहीं? जी सर, ये गलत नहीं हो गया? सर आई विल डू नहीं क्लोज हो गया। मॉनिटरिंग। आपकी स्टेटमेंट बहुत पीछे से होनी चाहिए थी, क्योंकि इसको प्रोटीन यूरिया है 300 मिलीग्राम से ज्यादा, इस और ब्लड प्रेशर है 150-100, तो इसलिए दिस इज अ केस ऑफ नॉट ओनली हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्पसिया। यहाँ से आपने शुरू करना था। It is a case of pre-eclampsia. Now, your management, your management will depend upon how the patient progresses. If the patient remains under control, then I'll monitor, as you have said, monitor mother, baby, वगैरह और जो भी आपने करना है, and our mode of delivery will depend upon the control and baby's health. बगैर उसमें, ताकि आपके पास टाइम होता, आप कहते हैं अगर उसका प्री-एक्लेम्पसिया सीवियर हो गया, फिर उसमें रिस्क क्या हैं? उसमें हेल्प सिंड्रोम हो सकती है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं, उसमें जो भी हो सकता है, 2, 3, 4 नाम बोलने थे, फिर मैं उसकी मैनेजमेंट इस तरह से करती। Or unfortunately, if she goes into eclampsia, where she would require emergency treatment for eclampsia. 2-3 levels, how you would have done it? I would have shifted her to isolation room, 1-to-1 nursing, और उसके फिट्स कैसे कंट्रोल करूंगी, और उसके ये, और अभी भी मेरा जवाब भी पूरा नहीं ठीक, क्योंकि मैंने कहीं, आपने एक जगह लाबिटालोल का लफ्ज सिर्फ एक दफा बोला, उसको चॉइस ऑफ ड्रग्स बोलती कि ये दूंगी, ये नहीं दूंगी। फिर उसको अगर मैक्सल्फ का टीका लगना जो आप लगाती, तो उसको मॉनिटर कैसे करते, उसका जिक्र करते, फिर आपके 6 या 7 नंबर होते। अब मैंने खींच के आपको 5+ कर दिया। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपने बेहतर किया सभा से, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल आपने डाले जो कि पॉसिबली उसके बगैर भी काम चलता था। तो मसलन आपने बहुत पहले पूछा कि आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड है, वेरी गुड, और साथ ही पूछा एनी हेडेक, विजन, ये वो, वहां तो पूछ लिया बगैर नाम लिए, बगैर नाम लिए। और यहाँ पे किसी ने कहा अगर ब्लड प्रेशर 150 से 100 हो, ये बजाय 135 और 85 हो जाए, तो फिर भी उसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो
आपने आपका लेटर पार्ट जो था वो बेहतर था सभा से, लेकिन पहला पार्ट कोई खास बेहतर नहीं था, खास बेहतर नहीं, क्योंकि here is a case of प्री एक्लेम्सिया, मैंने प्रोटीन डाल के प्री एक्लेम्सिया बना दिया। प्रोटीन आपने पहला फिक्र होना चाहिए कि आप ये पास्ट हिस्ट्री है वो पूछ के दिस प्री एक्लेम्सिया I'll try to manage her so that it doesn't become severe preeclampsia or eclampsia, ये लफ्ज बोलना। फिर severe preeclampsia का क्या क्या होता, eclampsia का क्या क्या होता, वो आप करती तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी anyway we are getting better। और सर एक क्वेश्चन पूछूं? जी जरूर पूछिए। सर ये जो इन्होंने इंडक्शन दी और स्टेरॉइड दिया, ये देना जरूरी था इस केस में? ये अगर सब कुछ ये ठीक है जैसा ये कह रही है कि फीटल मॉनिटरिंग भी ठीक है, मैटरनल मॉनिटरिंग भी ठीक है, तो फिर शी कैन बी डिलीवर वजाइनली, क्यों नहीं? नहीं सर, इंडक्शन या स्पॉन्टेनियस के लिए हम वेट नहीं कर सकते थे इसमें, अगर हर चीज ठीक है? और ये बात ये है कि ऐसे केस में आप फिक्रा बोल के आगे चले ना। इफ बेबीज कंडीशन especially CTG biophysical profile, they indicate, then I will either continue pregnancy till 38 weeks completed, or I will induce according to the condition baby at 37 weeks or even earlier। इस तरह से बोलते हैं। ओके सर। चले सर अभी तो ऑलमोस्ट सर इसमें हमारे डिफरेंशियल जो हैं वो हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद रीनल डिजीज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद डायबिटीज एंड जॉइंट पेन, फिर नेफ्रोपैथी है, लेकिन कोई ड्रग ले रही है। वो जाहिर है आप उसको स्प्रेड कर दो ना राइट इन द बिगिनिंग। दिस इज अ केस ऑफ essential hypertension with diabetes, this is a case essential hypertension with renal function impairment, या जो भी है उसको दो हिस्सों में फौरन बांटो। एक हिस्से में आप उसके एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात करो और थोड़ा सा टाइम निकाल के उसकी जो मेडिकल डिजीज दूसरी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के अलावा रीनल डिजीज या कोई और एनीमिया है, कुछ भी तो हो सकता है, उस पे भी डालो, लेकिन मेन आपका एम्फेसिस ऑन हाइपरटेंशन रहेगा। चलें सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये जिस तरह से डॉक्टर नाजिश ने इसे एडमिट किया है, स्टेबलाइज किया है, फिर हम ये जो प्री क्लेम्शिया की बात करेंगे कि हम 2 वीकली ग्रोथ स्कैन कराएंगे और डॉपलर स्कैन कराएंगे। अगर हमारे पास ग्रोथ इम्पेयर्ड आती है या डॉपलर स्कैन हमारे पास सही नहीं आता, तो इसका मतलब है कि पेशेंट ने स्वेयर प्री क्लेम्शिया डेवलप किया है, हम उसे अब एडमिट करेंगे और इंटरवीन करेंगे। सर हम इस तरह से बात को आगे बढ़ाते। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको इस पेशेंट में अगर हाइपरटेंशन परसिस्ट करती है, बेबी ठीक ठाक है, रीनल फंक्शन इससे ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होते, तो कोई बात, फिर कंटिन्यू करो। और आपने साथ कह दिया, बट इफ द फंक्शंस डिटेरियोरेट और मदर कंडीशन गेट्स वर्स और बेबी मॉनिटरिंग इज, देन आई विल इंटरवीन। ऐसे अल्फाज बोलने ना, क्यों नहीं बोलते वहां। चलो जी, तीसरी वॉलंटियर थी कुर्रतुलैन हाफसाबाद। सर मैं थी वॉलंटियर सर, मैंने नाम लिखवाया था साहिबा। साहिबा सर देखिए मैंने नाम लिखवाया देखे, आज तो नाम जो लिखे गए, आप साहिबा, साहिबा, साहिब आप मौजूद नहीं होंगी। आज जो नाम लिखे गए, पहला लिखा गया सबा, दूसरा लिखा गया नाजिश, तीसरा लिखा गया कुर्रतुलैन, चौथा लिखा गया फातिमा, पांचवा मैंने कहा रहने देते हैं, और आप उस वक्त नहीं बोली थी, आप पिछले साल बोली होंगी, यानी पिछले बुध को, आज नहीं बोली, लेकिन मैंने पांचवा नाम नहीं लिखा हुआ। आपकी बारी आ गई तो मैं आपसे पूछ लूं। अभी तो तीसरा है कुर्रतुलैन। जी सर। ये कौन थी, क्या नाम था इनका, मैं लिख ही लूं। नाजिश, साहिबा।
साहिबा, चलो मैंने 5वें पे साहिबा लिख ली। चलो तो मेरा भी लिख दिए ना 6ठे पे डॉक्टर लुबना। अब पहले बोला करो, अब 5 हो गए, अगले बुध को, परसों होगा बुध, मैं लुबना लिख लिया। जी सर ठीक है। आ भी जाना जी, सर मैं आ आप जाऊंगी। सर अक्सर। परसों के लिए मेरा नाम भी लिख लें, फलक। चल तुम्हारा नाम भी लिखता हूँ, क्या नाम? फलक। हाँ जी, फलक फलक फलक। तुम तो आसमान पे बैठी हो पहले। चलो जी, औरतलैन, जी सर। बात को आगे बढ़ाते हैं। पेशेंट एज 30, प्राइमरी ग्रेविडा एट 34 वीक्स, ब्लड प्रेशर है 160/100, comes to you with a complaint of headache and visual disturbance. यूरिन में प्रोटीनूरिया 300 से भी ज्यादा, 500 मिलीग्राम। जिसको कहते हैं 2+। चलो After mutual introduction and rapport building and confirming the biodata given to me, I will proceed with the missing biography data merit for LMP regularity of the cycle, and then I will I will inquire about the history of the in this history of blood pressure in this pregnancy, and any regular checkup, and any dating scan and anomaly scan in this pregnancy, and any antihypertensive she is taking up till now. And then I will inquire about the history of headache and visual disturbance and its duration and its severity. And then I will, as this is the case of severe preeclampsia with imminent eclampsia as signs of, so immediately I will admit this patient with along with side-by-side management of assessment and management. In assessment, I will again, ask for any growth scan, fetal movements, and then I will inquire about any chronic disease, diabetes, hypertension, chronic hypertension, renal disease, autoimmune disease, any family history of hypertension and diabetes, and any previous admission for due to hypertension in this pregnancy, any episodes of pervaginal bleeding in this pregnancy up till now, and others. I will also inquire about the other signs of imminent eclampsia, like any aura fit, any history of fit in this pregnancy. Then I will I will ask about any drug allergy, any past medical or surgical history, and socioeconomic status. Then I will inquire, go for the examination and BMI of the patient, pulse, blood pressure, temperature, and respiratory rate, cardiovascular, pallar, jaundice, thyroid, and fetal edema, and the systemic examination, cardiovascular examination, and respiratory examination for any crepitations. And then symphysiofundal height. Then I will go for the abdominal examination, go for the symphysiofundal height to check the growth of the baby in accordance with the gestational age or not, lie and presentation, estimated amount of liquor, estimated fetal weight. Then I will go for the investigation, which baseline investigation with blood group, RH factor, complete blood count with date and time, hemoglobin gram per deciliter, total leukocyte count, and platelet count, and then hepatitis B surface antigens, anti-HCV antibodies, and HIV antibodies. You specifically urine complete, as my patient has proteins, raised protein 2+ proteinuria. So I will go for the protein creatinine ratio as well, and then a liver function test, and renal function test, and uh, then I will go for the recent growth scan and Doppler ultrasound for this patient. Then I will counsel my patient regarding her condition, as she is a
severe preeclampsia. It need for fetal-maternal implication. She might develop eclampsia, cardiovascular stroke, HELLP syndrome, acute renal failure, pulmonary edema, and placental abruption. And fetus might go into growth restriction, distress, and uh, and IUD as well if blood pressure is not controlled. So I will admit this patient and involve the multidisciplinary team involving the senior obstetrician, medical specialist, anesthetic, and ICU care. Then I will control her blood pressure. For control of blood pressure, I will give her injectable IV labetalol according to the protocol. And then I will monitor the blood pressure every 15 minutes. And my target is to control the blood pressure at the 135/85. And I will do the proteins urea daily, and observe for the sign and symptoms, and the CTG of the baby daily, Doppler ultrasound, and Doppler ultrasound of this patient, and then I will give my patient and magnesium sulfate for the fit prevention in the loading dose that is 4 gram, 4 gram according to the protocol, and then I will keep patient my admitted and monitoring. Once patient is stable, if my patient is stable, then I will discuss about the mode of the delivery, my mode of the delivery and time of the delivery according to the maternal and fetal condition. We can deliver the accordingly, and we will monitor the patient during labor and if cesarean section is decided, and active management of 3rd stage of labor. And then I will hand it over the babies to the pediatrician if it is for the further evaluation. And I will keep check काफी बेहतर है, काफी बेहतर। मेरा ख्याल है नंबर 4 पे पहुंचेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे आप you're listening to me in the sense के आप फोकस नहीं सब बातों पे, लेकिन इससे भी बेहतर कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछा गया। सर इस केस को हम ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्या कह रही हैं आप? हम ऐसे नहीं स्टार्ट करेंगे, ये तो बिल्कुल इम्पेंडिंग इक्लेम्प्सिया है। सुन लीजिए पहले, मैं कमेंट कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलिए। तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, आप सब सुन लीजिए, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इस पेशेंट को उन्होंने बजाय इसके कि 4-5 मिनट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे जाया करती, बहुत ही पहले इन्होंने कह दिया मैं इसको एडमिट करूंगी। ये एडमिट का लफ्ज इन्होंने बोल दिया, उससे पहले सिर्फ ये पूछा, बायोडेटा पूछा, LMP वगैरह चलो हो गया, ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन भी कर लिया, और फिर सेवेरिटी के हिसाब से उसको डील किया और एडमिट किया। इतना सा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कुरतुलैन ने फिक्रा बोला है। जो इमरजेंसी आए आपको, ये इमरजेंसी है जिसको विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, हेडेक हो रही है, ब्लड प्रेशर 160/100 है, ये सारी बातें कह रही हैं दिस इज अ केस ऑफ acute emergency, the patient may get fit anytime। अभी हुआ नहीं है उसको फिट, उसका ब्लड प्रेशर है 160/100, उसको हेडेक हो रही है, उसकी विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, और यूरिन में प्रोटीन यूरिया है 2+।
इन्होंने कहा सिंपली थोड़ा सा बायोडेटा लिया, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया और फिर उसको अल्ट्रासाउंड होता है क्यूबिकल में, वो उतना सा स्कैन कर लिया कि बेबी लाइकर हार्ट बीट वगैरह करके एडमिट। इसी पे मैंने इनको, मेरा हाथ हल्का हो गया इनके साथ। She has realized कि ये वो पेशेंट है who can go into a fit any time. Such a patient, जैसे severe APH का हो, severe PPH का हो, कोई severe kind of problem है, उसमें आपने वो सारी डिटेल हिस्ट्री की नहीं बोलनी, उसमें कहना है प्रिलिमिनरी चेकअप करके उसकी जनरल ब्लड प्रेशर, जनरल कंडीशन और बेबी आई विल एडमिट। फिर एडमिट करके फिर इन्होंने बोलना शुरू किया असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बेबी, क्रॉनिक डिजीज है कि अब एक्यूट हुई है, फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज बोली, एनी ब्लीडिंग, फिर कहा कि एक्लेम्सिया इमिनेंट है, कह के फिर ये एलर्जी पूछने चली गई, थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम। एनी सर्जरी की कोई हिस्ट्री पूछने चली गई। बाबा एक्यूट इमरजेंसी में ऐसे बातें नहीं पूछते। हाँ अलबत्ता रेस्पिरेटरी इन्होंने चेक किया, वेरी गुड, सीवीएस का लिया, जॉन्डिस देख लिया, इटीमा देखा, गुड, फिर फंडल हाइट देखी, ग्रोथ ये वो, फिर ठीक है, ये सारा कुछ कहिए कि मैं, लेकिन ये कह के एडमिट आफ्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट आई विल टेक डिटेल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द रिलेटिव्स और फ्रॉम द पेशेंट एंड टू प्रोसीड फर्दर। तो आज का जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको हिस्ट्री में तो ऐसे लगे कि ये तो एक्यूट इमरजेंसी है, हिस्ट्री ऑफ सीवियर APH, हिस्ट्री ऑफ सीवियर PPH, अनकॉशियस पेशेंट, कुछ भी हो, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस आने से पहले उसको फिट पड़ गई है रास्ते में। मैं आपको हंसाने के लिए कहानी सुनाऊं, मैं जब इंग्लैंड में था तो वहां पेशेंट, हर पेशेंट लेबर रूम में आके डिलीवर होती, कभी कभार होता था कि वो रास्ते में एम्बुलेंस में डिलीवर हो जाता, एक किसी तरह की पेशेंट, और वो उनको हम अच्छा नहीं ट्रीट करते थे, समझते थे कि तुम बाबा पहले क्यों ना चली, तो क्यों रास्ते में। तो मैं आया कि नर्स ने कहा जी एम्बुलेंस में आई है, बच्चा भी आया है साथ, आके देखो। तो मैंने जरा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा, तो पेशेंट की सिस्टर साथ थी, तो मुझे कहती है डॉक्टर I tried to push the baby back twice but it wouldn't stop। यानी उस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे जब होता है, nothing can push it back, it does come out। तो उसी तरह आज का मोटा सा मैसेज, अगर आपको ऐसी हिस्ट्री दी गई जिसमें लगता है कि इमरजेंसी है, आपने ब्रीफ हिस्ट्री देनी है। उसके बाद कहना है आई विल एडमिट, गिव हर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, देन टेक डिटेल्ड हिस्ट्री। आप यहीं पे पास, आप यहीं पे पास। फिर है आगे की बात कि एडमिट करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद फिर डिपेंड्स के वो इसी तरह फिट के बगैर चलती है, लेकिन चूंकि उसको हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, ब्लड प्रेशर भी है, वो जो आपने मैक्सल वगैरह देना है वो दीजिए। उसका ब्लड प्रेशर नीचे करने के लिए हाइड्रोजीन, लेबिटालोल जो भी देना है दीजिए। ये बोलिए कि to avoid any fit coming, I'll give her Maxel, उसकी डोज इतने ग्राम दूंगी, ये इस तरह उसका चेक करूंगी, यूरिनरी आउटपुट चेक करूंगी और
रीनल फंक्शन चेक करूंगी, वगैरह जो भी होता है। क्लिनिकली वो नीजर को चेक करूंगी, इस तरह के अल्फाज बोलिए। और फिर फर्दर आप ये फर्दर चेक हिस्ट्री दूंगी डिटेल में। और क्या करूंगी, आप वहां तक पहुंचने से पहले पास हो चुके हो, आप पास हो चुके हो। ऑलमोस्ट 10 बज गए, लेकिन ये चौथा केस भी कर ही लेते हैं। चले, फातिमा फ्रॉम लाहौर, आर यू देयर? जी सर। जी सर। जी, पेशेंट एज 20, प्राइमरी ग्रेविडा, 8 महीने का, उसको जेस्टेशनल एमेनोरिया है, is admitted with a history of convulsion at home, and patient is unconscious, blood pressure 160/110 है, albuminuria 3+ है, और उसकी बहन ने बताया कि फिट आने से पहले वो कह रही थी मुझे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। Okay, sir. Sir, so this is a case of eclampsia. Sir, this is obstetrical emergency. So I will admit my patient. I will stabilize her blood pressure by giving her IV hypertensive. I will give her. तो बोले ना, इतना भी ओवर शूट ना करो, इतना भी ओवर। अगर तुम देख रही हो तो उसका प्रिलिमिनरी जो भी है, ये आपने बोला शी इज ए केस ऑफ एक्लेम्पसिया एंड हैड फिट, और अब ब्लड प्रेशर ये है, मैं उसका जनरल फिजिकल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्विकली करके उसको इमरजेंसी में कुछ तो कहे ना, इतना प्रिलिमिनरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दे ना। जी सर। Sir, I will admit her. सिर्फ ये कह देना कि इसको क्योंकि एक्लेम्पसिया है, मैं करना कोई नहीं, वही करेंगे जो दाखिल हो ना, कुछ तो बोलिए ना। मैं उसको अनकॉन्शियस पेशेंट है, मुंह में माउथ गैग दूंगी, उसको ड्रिप लगा दूंगी, उसको मैक्सल लगा दूंगी, और फिर जी सर, मैं उसको बोलने लगी हूँ। दोबारा बोलो फिर। Sir, as this is a case of eclampsia, this is an obstetrical emergency. I will admit my patient. I will reconfirm the history from the attendant. I will check her blood pressure, do her general physical examination, and assess the fetal heart rate. I will start her on IV antihypertensive, IV labetalol, 20 मैंने ये milligrams. दास कुड़िए मैंने ये दास, उसका फीटल हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? मेरी नजर में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। जब सब स्टेबलाइज हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे कि बच्चा जिंदा है कि नहीं है। उस वक्त तक मैनेजमेंट तो माँ 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 नहीं। सर अगर ब्रेडिकार्डिया डिलीवर नहीं करेंगे? वो बाबा पहले उसको एक्लेम्पसिया हुआ है, उसको पहले उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो दोगी। सारा बोलना है, सारा बोलना है। आप एडमिट करके समझते हैं फर्क हो गया। मैं उसकी इंटरवेनस लाइफ लाइन लूंगी, मैं उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मैक्सल इतना 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 बोलूंगी। मेरी बीवी कहती है तुम बहुत बोलते हो, बंद करो। Sir, I will keep the patient left lateral. I will give oxygen, save the IV line. I will give her IV hypertensive. I will give her IV magnesium sulfate, catheterize the patient. And then after stabilization, I ये will सारे also. तो पहले उधर माउथ गैग बाबा डालो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होती है, टंग फॉल्स बैक, उसकी रेस्पिरेशन इंपेयर्ड हो जाती है। क्या करती हो तुम लोग? कैथेटर पाना पहले होंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट की मैनेजमेंट पढ़िए जाती, उसकी ब्रीदिंग ठीक करनी है सबसे पहले ये, फिर इंटरवीनस लाइन लेनी है।
ताकि उसमें आपको मेडिकेशन भी दे सके और ड्रिप भी लग जाए। फिर उसको कैथेटर डालेंगे। कैथेटर तो है इमरजेंसी, लेकिन ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि फौरी कैथेटर पाओ तो मरीज जाग जाएगी। फिर उसको मैक्स सर्व देना। ये 4 5 1 2 3 4 करके लिखिए और इसी तरह बोलिए। So I will keep the patient left lateral, maintain airway, breathing circulation. हाँ, Put ये the बोल oral airway. Put the oral airway, maintain IV line, give her IV antihypertensive, give her IV magnesium sulfate in the loading dose of 4 grams. And ये I will बोल catheterize the patient. शुक्र है चौथे केस तक हम कुछ न कुछ पहुंचे हैं, फोकस ऑन टू द पेशेंट। तो असल में हमारे घर मेहमान आए हैं, तो दे वेटिंग। अब ऐसा करते हैं, यही चौथा केस मैं बुध को यहाँ से शुरू करूँ, यही फातिमा करेगी। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था कि मैं हाफ पे जा रहा हूँ, लेकिन वी हैव फ्यू गेस्ट्स, आई हैव टू अटेंड टू दैट। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. परसों मुलाकात होगी। Thank you so much, Allah sir. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Allah Hafiz. थैंक यू Allah सर। Hafiz.